to work with MySQL files from Python, we need to import mysql.connector. mysql.connector is a string, it is a connection statement that is used to connect your MySQL command, your Python commands, your MySQL commands from Python. Okay. Now, what is the connection statement? So first of all, we have to import mysql.connector. Then we have to specify a connection variable. Here the name of connection variable is mydb. Okay, so this is mydb. Okay. So mydb is equal to mysql.connector.connect. Then we have to specify 3 parameters. For the first time, 3 parameters for the first time. It is not always we are working with 3 parameters. One more parameter will be added. See, we have told that where the server is installed. So we are saying the server is installed in current folder, current computer. Then we are saying what is the username, so we are providing username. Then we are talking about the password. But we are missing something. If we want to work with a table, we are missing something. That is actually a database name. Because whenever you work, you need a database in which you can work. But here database name has not been given. Because this is a simple statement by which we connect the connection between Python and MySQL. Right? Now let's go to the next page. Here we are creating a database. So since you have learned MySQL, how many times database is created? Only once. When database has been created, then you make tables frequently. Then you issue queries, right? But table बार-बार बनता है, और whereas database is made only once. So first thing that you have not, when you have not made database, then what you can do? You can again do this, and when you have established connection, so this is the command that will establish a connection between MySQL and Python. Now next is myCursor is equal to mydb.cursor. This is something that is making your prompt ready to accept command. Okay, that is making your prompt ready to accept command. myCursor, तो जो भी आप कमांड इशू करते हैं बच्चों, वो करेंगे myCursor पर. कर्सर आपका कमांड प्रॉम्प्ट जैसा होता है. जैसे MySQL में कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर उसको पाइथन में कहा जाता है कर्सर. सो हमने लिखा myCursor इज इक्वल टू mydb.cursor. ये एक वेरिएबल लिया हमने, और mydb हमारा कनेक्शन स्टेटमेंट है. कनेक्शन स्टेटमेंट से हमने कहा कि कर्सर को एक्टिवेट करिए और किस वेरिएबल में डाल दीजिए, myCursor में. अब जो भी आप कमांड देंगे वो myCursor.execute के अंदर देंगे. कोई भी SQL की कमांड myCursor.execute के अंदर लिखेंगे आप. डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस माई डेटाबेस. तो यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया है इन्होंने माई डेटाबेस के नाम से. डेटाबेस क्रिएट हो गया, राइट. जब डेटाबेस क्रिएट हो गया बच्चों, यहाँ पर एक और कमांड लिखी है इन्होंने. देखो, जब डेटाबेस क्रिएट हो गया और आपको देखना है कि हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं जो अभी बने हुए हैं. जैसे सिस्टम का डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ठीक है. तो आपने एक और डेटाबेस बनाया जिसका नाम माई डेटाबेस है. अब आपने क्या किया, आपने लिखा myCursor.execute शो डेटाबेसेस. ये कमांड याद है किस लिए यूज़ करते हैं? सारे डेटाबेस देखने के लिए. और सारी टेबल्स देखने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? शो टेबल्स. ओके. अब होगा क्या, जब कर्सर एग्जीक्यूट होगा तो myCursor में आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारे डेटाबेसेस होंगे. myCursor में आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारे डेटाबेस होंगे, और यहाँ से हमने उसको एक एक करके डिस्प्ले कर दिया. ऑलराइट. तो इस तरह से हम सारे टेबल्स जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सब देख सकते हैं. ये चीज़ें हमें बार बार नहीं करनी है. दिस इज़ टू बी डन ओनली वंस. अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको यूज़ करना है. यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कनेक्शन स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, यहाँ पर एक और पैरामीटर यूज़ किया गया, डेटाबेस इज इक्वल टू माई डेटाबेस. हमने क्या बताया, सर्वर कहाँ है,
यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और डेटाबेस का नाम क्या है। डेटाबेस ये वही डेटाबेस है जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें हम काम करना शुरू कर सकते हैं। तो जब हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है और डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, अब हम अपनी कमांड शुरू कर सकते हैं। तो आपको ये वाले जो स्टेटमेंट हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें पहले आप क्या करेंगे, डेटाबेस अगर क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद ये एक मॉड्यूल बनाएंगे। पहला प्रोग्राम आप लोग जो बनाएंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो बनाएंगे डेटाबेस को क्रिएट करने वाला। वो सिर्फ एक प्रोग्राम होगा और एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्योंकि आपका डेटाबेस बन गया है, हर बार आप अपने नए डेटाबेस के साथ काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ तक समझाने की ज़रूरत है। जो मैंने ये ब्लॉक किया है इसका, ये क्लियर है या इसको समझाऊँ फिर से? क्लियर है? पक्का? ओके। नाउ हमने कर्सर क्रिएट किया और कमांड दी क्रिएट टेबल कस्टमर, नेम varchar 255, एड्रेस varchar 255। ये क्वेरी हमने दी कोट्स में, और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपके डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। इज दैट ओके? एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से? कस्टमर्स के नाम से। उसमें से जो भी हमने दिया है, ये तो खैर टेबल दिखाने के लिए, जैसे शो डेटाबेसेस था, सेम शो टेबल्स। अब कुछ चेंजेस किए इन्होंने एक प्राइमरी की क्रिएट की। ठीक है, यह लिखा क्रिएट टेबल कस्टमर्स आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। तो ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है, इसको कुछ बोला जाता है। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, डिफॉल्ट, नल, नॉट नल, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट, CONSTRAINT, कॉन्स्ट्रेंट। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई किया कि आईडी जो है ये एक ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है, यानी इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, और ये एक प्राइमरी की भी है। उसके बाद नेम और varchar इन्होंने एडजस्ट किया। ओके, इसके बाद एनीथिंग कुछ कहा बेटा? ओके, अब है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कॉलम आईडी, एक प्राइमरी की ऐड करी इन्होंने। तो ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे हम टेबल में चेंजेस करेंगे। ओके, टेबल हमने क्रिएट कर ली थी। अब हम डाटा डाल रहे हैं। डेटा डालने के लिए क्या करना है? कर्सर क्रिएट करना है, और कर्सर क्रिएट करने के बाद SQL इज इक्वल टू इंसर्ट कस्टमर्स नेम एड्रेस वैल्यूज़। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी नई चीज़ आ गई जो हमने पहले SQL में नहीं की थी। हम क्या करते थे, पहले वैल्यूज़ के अंदर सीधा सीधा वैल्यूज़ डाल देते थे। यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमको? वैल्यूज़ डालने के लिए यहाँ पर हमें इसको बोला जाता है बच्चों कन्वर्जन स्पेसिफायर। कन्वर्जन स्पेसिफायर। और हमने क्योंकि दो वैल्यूज़ डालनी है तो हमने 2 बार कन्वर्जन स्पेसिफायर यूज़ किया। ये दोनों वैल्यू जो हमने डाली हैं, ये दोनों वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हैं, varchar है। तो varchar के लिए जो कन्वर्जन स्पेसिफायर होता है वो %s होता है। s माने स्ट्रिंग, s माने स्ट्रिंग। अब हमने क्या किया, वैल नाम का एक टपल लिया और उसमें 2 स्ट्रिंग्स पास कर दी। ओके, यहाँ पर हमने लिखा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL और वैल, या दूसरा पैरामीटर दिया हमने। जबकि जब हम पीछे माई कर्सर को एग्जीक्यूट करा रहे थे तो सिर्फ सिंगल क्वेरी लिख रहे थे, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्वेरी को एज अ वेरिएबल लिया और वैल को एज अ टपल लिया। तो ये जो क्वेरी है ये एग्जीक्यूट होगी, और जहाँ पर भी %s होगा वहाँ पर वैल अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा इसको। बी अडॉप्टिव वाइल लर्निंग दिस। अडॉप्टिव का मतलब क्या हुआ? आप जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको वैसा ही मानना और करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं हमें एकदम से समझ में नहीं आती क्योंकि कनेक्टेड नहीं होती। जैसे MySQL के साथ पाइथन का कनेक्शन आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आपको अडॉप्टिव होना पड़ेगा कि इसको करने का यही तरीका है। आज से अडॉप्टिव हो जाओगे तो 1-2 दिन में कंफर्टेबल हो जाओगे। अभी अगर लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तब इसको समझने में उतना ही टाइम लगेगा। तो ये इसके एक लिखने का तरीका है, और आप इसको इसी तरह से मान करके चलें कि इसको लिखने का यही
तरीका होता है, राइट। तो इस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हम नहीं पढ़ रहे हैं, या लिस्ट चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, एक इंसर्ट मल्टीपल रोज का ऑप्शन आया है, तो हम कई सारी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। आप लोगों को पता है वैल करके, तो यहाँ एक लिस्ट बना दी इन्होंने टपल्स की, और सेम वही किया होगा। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी लगाया है इन्होंने यहाँ पे। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी का मतलब बहुत सारी कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो फिलहाल इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको कंसिडर करते हैं। ओके, इस तरह से आपने और वैल्यू डाली है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बस एक क्वेरी निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ करके दिखाता हूँ। यस, इफ़ यू वांट टू सी द क्वेरीज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। जो भी रिकॉर्ड हमने डाले उनको देखने के लिए कर्सर एग्जीक्यूट किया, माई रिजल्ट इज इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल। अब यहाँ पर दो कमांड होती हैं बच्चों, एक होती है फैच और एक होती है फैच ऑल। फैच ऑल क्या करती है, जितना भी डेटा टेबल में है वो सारा का सारा एक साथ नेस्टेड लिस्ट में दे देती है, ठीक है। जैसे फॉर एक्स एंड माई रिजल्ट, और एक एक रो करके आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप केवल फैच लिखेंगे, फैच 1, तो सिर्फ पहला रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद आप दोबारा फैच लिखेंगे तो फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, फिर से फैच लिखेंगे, तीसरा रिकॉर्ड आएगा। इस तरह से जैसे जैसे आप फैच बार बार लिखते रहेंगे, नए नए रिकॉर्ड इसमें आते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको ऑन पेपर करते हैं कि ऑन पेपर इसको कैसे किया जाता है। यस, हाँ, इसमें हम अगर 3 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3। हाँ, कल स्कूल आना है दी, हाँ बोल आ गए, कल स्कूल है, कल रेगुलर स्कूल है आप लोगों का, ठीक है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3, तो 3 रिकॉर्ड ही आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 5वें से 8वां रिकॉर्ड आए तो लिमिट 5,8, तो केवल 3 रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर फैच ऑल करेंगे तो सारा डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब इसको हम अपने कॉपी में करते हैं जैसा कि हम नॉर्मली करते ही हैं। ये अगर आप चाहें तो सीधा सीधा हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं पाइथन में। व्हाट डू यू से? चलो पहले कॉपी में कर लेते हैं। पाइथन तो वो एसक्यूएल तो अभी इंस्टॉल भी नहीं है मेरी मशीन में। MySQL फ्रॉम पाइथन। मैं जिस नाम से बोल रहा हूँ उसी नाम से आप लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे अभी फिलहाल। मेक डेटाबेस डॉट पाई के नाम से आप बनाएंगे। इसके अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। माई कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। पहला क्या था पैरामीटर? होस्ट था कि होस्ट नेम था? इज इक्वल टू क्या लिखना है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में कोई गैप नहीं है, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आईपी एड्रेस कितना? 127.0.0.1। होस्ट के बाद क्या लिखते हैं? यूजर नेम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? चेक कर लेना आपके कंप्यूटर में यूजर नेम क्या है। मोस्टली रूट होगा, नहीं तो ब्लैंक होगा, कुछ भी नहीं, खाली छोड़ देना।
पासवर्ड की स्पेलिंग देखना वहाँ पे क्या लिखी थी, अगर आपने नोट किया हो। याद है क्या थी वहाँ पे? चेक नहीं किया। वहाँ पे थी PASSWD, PASSWD। तो चाहे तो आप PASSWD लिख दें या पूरा पासवर्ड लिख दें, एक ही बात होती है। और ये है मेरे ख्याल से 1 2 3, एक बार चेक कर लेना इसको। इतना करने के बाद आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना, तो आप सिंपली लिख दें प्रिंट माईकॉन। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया होगा तो आपको उसका स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। माईकॉन लिखना या ना लिखना ये आपके ऊपर है, तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट बना करके लिख रहा हूँ, योर चॉइस। बेटर यू चेक इट एंड रिमूव इट। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ कर्सर। मैंने लिखा माई कर्सर इज इक्वल टू माई कनेक्शन डॉट कर्सर। ओके, ना मुझे क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी। एक काम करना, चलो लाइब्रेरी बना देना, माईलिब बना लेना इसका नाम, माईलिब। इज दैट ओके? देखने की ज़रूरत नहीं है, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर आपका प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। इतना समझ में आया? ये हमारा हुआ कनेक्शन स्टैब्लिश और डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब आप नई फाइल बनाएंगे अपनी। इस फाइल का नाम रखोगे क्या रखोगे, डेमो1। demo1.py। डेटाबेस बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है दोबारा से। आगे आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप डेटाबेस यूज़ करेंगे उसमें कनेक्टिविटी करेंगे। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, एक प्रोग्राम बना लो जिसमें कनेक्टिविटी कर लेते हैं और उस प्रोग्राम को एज अ फंक्शन दूसरे प्रोग्राम से कॉल करते रहेंगे। दोनों तरीके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लिखो जरा। इंपोर्ट, क्या लिखना है, MySQL डॉट कनेक्टर। आई एम नॉट राइटिंग, आप पहुँचो यहाँ तक जहाँ तक आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, ओके। इसके आगे लिखो BK ऑथर, BK ऑथर कॉमा लगा करके varchar 40। इसके अलावा आगे लिखो BK कॉस्ट। इसको डेसिमल ले लेना या नंबर ले लो, नंबर इंटीजर ले लो, इसको इंटीजर ले लो उसको। इसके बाद लो बुक पब्लिकेशन, BK पब्लिकेशन, BK पब्लिकेशन। ये सबका कॉमन होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को खुद से कराऊंगा, बाकी फिर आपको अपने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है। BK पब्लिकेशन हो गया। और क्या होता है जनरली बुक में, ऑथर भी हो गया। सब्जेक्ट ले लो, BK सब्जेक्ट varchar 30।
बी के सब्जेक्ट वेयर केयर 30, और एक ले लीजिए बाद में बी के स्टेटस वेयर केयर 10, बी के स्टेटस वेयर केयर 10. Okay, the last will be BK status where care 10. ओके, अब क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने क्वेरी लिखी है, एग्जीक्यूट नहीं कराई. अब क्या लिखेंगे बच्चों, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्वेरी. इज दैट ओके? तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट करेंगे. ये हमारी पहली टेबल क्रिएट हुई है. बाकी सुनिए क्या करना है इसमें, लिखो अभी. इसी तरह से आप लोग एक और टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप स्टूडेंट रखेंगे. ओके, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे जो आपके लाइब्रेरी कार्ड में होती है. आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी कार्ड में होती है, जैसे बुक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने बुक के एसक्यूएल में डाल दी, टेबल में डाल दी. ऐसे ही आप बनाएंगे स्टूडेंट के लिए. फिर कल हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ठीक है, चलिए ठीक है, ओके.